Huh. So today we are going to discuss positive clampers, right? So last time we covered the negative clampers. So today we'll start with positive clampers. In positive clampers, it's just the change in the diode direction. As in the case of negative clampers, you're having diode opposite to this, right? So here N is upside and P is below side, right, of a diode. Now let's consider the output of this clamper. So for the first half positive, what will happen? Anybody? Will the diode conduct? No sir, reverse bias में जाएगा. Yeah. So for the case one, diode D is reverse biased. Right. So let's talk about first case two. Because we have to start from the cycle where the capacitor starts charging. That is where the diode is on. We have to always start from that. Right. So from the case two, when I apply the negative half, right? Negative half is your case two, positive half is your case one. Right. So for the negative half of the input, your diode will act as what? Short circuit, forward bias, right? So it means for that case, what will be the circuit? It looks like this. Short circuit. Short circuit, right? And then we are having a resistor element here R, and we are getting output here V. Now, what will be the value that this capacitor will get charged? Anybody? सर V में हो जाएगा ना? That depends upon the input peak. So input कितना लगाया यहाँ पर हमने? For the case 2, negative input is there na? So this magnitude is how much? Minus V. Minus V. Right. So it means what is the voltage across this capacitor? So minus V. Minus V. Right. Yes, sir. That is negative this side, positive this side, right? This side. Yes, sir. So now when the next cycle will come, that means next positive half will come. Let me draw for that. Once the capacitor gets charged to minus V voltage, now when I apply the positive V, what will happen? This diode will be open, Open circuited. right? Yes, sir. And it will look like this. Now, can you tell me what will be the output? Here I am getting minus, plus, this is my V now. And I Yes, am sir. also applying V here with positive here, negative this side. So if I apply here the KVL loop, what will be the output? The input from negative to positive goes to plus V. Yes, sir. Negative positive goes with plus Neg- V. Yes, sir. And here positive negative goes with minus V. Minus V. Is equal to Simple 0. time. So 2V. V dot कितना आ गया? 2 2V. times V. 2V. Yes, sir. Got it? So now, Yes, sir. if I try to make the sketch, output sketch, तो output sketch कैसे बनेगा? Let me draw it on a separate page. For the output V naught, my voltage will start from where? 0. Yes, sir. Then it goes to positive, 0, positive, 0, and so on. And this value will be how much? Plus 2V. 2V. It is 0. Yes, sir. So this is the output, which is the output of positive clamping. Any doubt in this? Now, No, here, sir. what is the output voltage swing? That is 2 volts minus 0 coming out to be 2 volts. So my output voltage swing is 2 volts. And what is our input voltage swing? If I go back to the input is from plus V to minus V, right? So if I consider this, Yes, sir. so what will be the input voltage swing? Plus V minus of minus V. Minus V. Coming out to Minus be V. 2V. So it means input swing and output swing exactly matches. Matches. Yes, sir. Right? Hmm. Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's go back to the second circuit. This was your circuit 1. Now let's talk about circuit number 2. So in circuit number 2, what is the difference? That here we have applied one special battery. Battery in such a way that positive is upper side and negative is lower side. It means this battery is supporting the diode to act as forward bias, even Forward if I'm not bias. applying an input, right? Yes, sir. So now the question is that for what particular voltage the capacitor will get charged when the diode is on?
सर जब वी आई V1 से ज्यादा होगी, जब आई जब आपकी वी आई V1 से ज्यादा होगी, डेफिनेटली सी वी आई तो आपके पास क्या है, देखो वी आई इज आइदर प्लस वी एम प्लस वी और माइनस माइनस। है ना। तो हमें ये तो पता है कि प्लस वी अगर लगाऊंगा तो आपका डायोड काम नहीं करेगा, है ना। यस सर, नेगेटिव भी लगाऊंगा तो डेफिनेटली डायोड काम करेगा, ये तो मुझे पता है। यस सर, तो ये तो जो इसकी वर्किंग है देखो पॉजिटिव क्लैंपर्स की फॉर ऑल दीज थ्री सर्किट्स इज सेम, कि पॉजिटिव भी क्या होगा नेगेटिव भी क्या होगा। अभी हमें बात क्या कर रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो स्टार्ट कहां से होगी और कहां तक जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी V1 की, राइट। सो नाउ वी विल फोकस दैट कि जब हमारे पास इनपुट मान लो मैंने माइनस V लगाया, उस टाइम पे हम कह रहे हैं कि क्या कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। अब वो चार्जिंग जो हो रही है तो वो VC कितनी आएगी, तो उसके लिए क्या लगाओ, यहां से लूप लगाओ। यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, फॉर द आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस नेगेटिव सप्लाई, राइट। क्योंकि नेगेटिव सप्लाई देंगे तो आपका डायोड ऑन है, उसी टाइम पे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, राइट। तो इट यस मींस सर, जब हम इसको यहाँ पे लूप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस। माइनस वी इज इक्वल टू वी है हमारे पास, है ना। सो माइनस वी। अब यहाँ पर क्या है, वोल्टेज और कैपेसिटर हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। लेट मी से यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, यस सर, सो इट विल बी व्हाट, प्लस प्लस VC, VC, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, माइनस V1 माइनस इज इक्वल टू 0। सो VC कितना आ जाएगा, सर V1 वी आई प्लस V1, V प्लस V1, हाँ वही। राइट। यहां पर कुछ Yes, गलती तो नहीं की मैंने, नो चेक सर, करो, सर ठीक है। ठीक है। इट मींस कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू V प्लस V1 और माइनस V प्लस V1 होगा। सर माइनस कैसे, वो दोनों तो माइनस में ही है ना। अब बताओ, हमने ऊपर वाले केस में क्या कहा था, फॉर दिस केस आवर कैपेसिटर वोल्टेज वाज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, -V माइनस V। जब हम माइनस V दे रहे हैं, क्योंकि माइनस V के टाइप पे क्या है आपकी माइनस V आ गई, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, here the capacitor should be charged to VC is equal to V plus V1 है, तब यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर माइनस नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, VC should be equal to माइनस ऑफ V plus V1। यस सर, तो माइनस में चलेगा। इट मींस अब क्या होगा कि जब मेरा VC is equal to कितना हो गया, माइनस ऑफ V plus V1, when I am giving input as minus V and when I am giving input as plus V, तब कितना होगा, सोचो, लेट मी गो बैक। अब मैंने प्लस V दी तो यहां पर क्या कहां लूप लगेगा, इस वाले में। यस सर, तो अब क्या बनेगा लूप, देखो जैसे हमने पहले बनाया था, इनपुट दिया आपने प्लस V, माइनस ऑफ कैपेसिटर किस पे चार्ज है आपका, सर V VC, प्लस V1 पे, यस सर। देन माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। अरे नहीं कुछ गलत हो गया, लेट मी सर, अगेन ड्रॉ इट, वेट, लेट मी अगेन ड्रॉ द सर्किट, देन आई विल अगेन राइट द इक्वेशन। दिस वाज कैपेसिटर, जब हमारा पॉजिटिव में आया तो ये हमने कहा शॉर्ट हो गया, ऐसी है ना हमारे पास, हाँ सर, और ओपन है पॉजिटिव में, फिर एक सेकंड पीछे, पॉजिटिव में ओपन है बच्चे, पॉजिटिव में ओपन होगा वो। पॉजिटिव में ओपन है। यहाँ पर हमारी बैटरी जो भी लगी हुई है उसका कोई फायदा नहीं हमारे पास। यहाँ पर आगे आएगा आर, ये RL हमारे पास क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव V नॉट, राइट। ये नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। ये हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ, राइट। तो नाउ अप्लाई द लूप हियर। सो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, क्या आया, Vi is equal to प्लस V, देन नेगेटिव से पॉजिटिव गया कितना आया, प्लस VC, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है, माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। तो V नॉट कितना आ गया, V प्लस VC, और VC कितना है मेरे पास, वो हमने जो पहले निकाला था दैट वाज करेक्ट, VC वाज V प्लस V1 ओनली, यस सर, राइट। तो इट मींस कितना हो गया, 2V प्लस V1। सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, कि अगर मेरा क्लैंपर सर्किट में एक मैंने एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी इस तरह से कि पॉजिटिव ऊपर है नीचे नेगेटिव है, राइट, विद वैल्यू V1, तो आपकी जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वो कहां से स्टार्ट होगी, अब +V1 से V1 से, वेरी गुड,
Yes, sir. So if I try to plot it output, तो output कैसे आएगी इस केस में? It will go up to maximum 2v plus v1, V1 and when it is that is not conducting, sorry, but V that is V1 conducting, पे आके रुक जाएगा. उस टाइम पे क्या आएगा आपके पास? V आ v1. सर V मतलब ये V1 के ऊपर क्लैंप कर गई. Yes, कि v1 से स्टार्ट हुई, और मींस कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, 3 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा. वो क्यों होगा? बिकॉज व्हेनेवर माय डायोड इज कंडक्टिंग, हम कह रहे हैं कि आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, राइट? अब जब Yes, sir. चार्ज हो रहा है तो वो वोल्टेज कितनी आ रही है? दैट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज. Yes, यहाँ sir. पर वोल्टेज क्या लगी है? ये बैटरी लगी है. बैटरी कितनी? Battery. 20 वोल्ट की. तो इट V1. मींस व्हेन माय डायोड इज कंडक्टिंग, आई एम गेटिंग द आउटपुट इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दैट डायोड, दैट इज v1 वोल्ट्स. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. अब एक चीज देखो, अगर मैं कहूं कि मैंने बैटरी की डायरेक्शन उल्टी कर दी, अब उसका बनाते हैं. थर्ड केस, कि आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ था यहाँ पर, और हमने यहाँ पर एक डायोड लगाया. डायोड हमने किस डायरेक्शन में लगाया था? वी हैव टेकन एन अप एंड पी डायोड, राइट? तो वही बनाते हैं Yes, sir. सर्किट. एन ऊपर बनाया हमने और पी नीचे बना दिया, P और हमने बैटरी अब यहाँ पर उल्टी लगा दी. अब ध्यान से देखो क्या होगा. ये आपका V1 की बैटरी है, ये कैपेसिटर आपका लगाया हुआ है यहाँ पर. अब इनपुट लगाई हमने VI, पॉजिटिव, नेगेटिव. दिस इज प्लस V माइनस V. तो अगेन ये चार्ज अब कब होगा? व्हेन माय इनपुट इज माइनस V, minus V. right? So capacitor C will charge, and if it will charge, what will be the value of VC? बताओ शाबाश. VC कितनी होगी? यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पॉजिटिव है ना, ऐसे लूप लगा. V minus V1. V minus V1. V minus V1. Very good. Now, if this is V minus V1, what will be the output voltage? 2V minus V1. Minus V1 only. Output voltage when my diode is conducting, it means क्या हो गया कि अब आपका कैपेसिटर ऐसे है, डायोड शॉर्ट हो ओपन गया, सर्किट हो गया. राइट? और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है ऊपर, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ गई? माइनस V1. Got it? सर हाँ जी. सर लेकिन आपने जो बैटरी लगाई है वो तो उसको वो कर रही है ना, रिवर्स बायस कर रही है ना. बिल्कुल करिए रिवर्स बायस. तो सर फिर वो ओपन सर्किट नहीं एक्ट करेगा. सी, यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि जो V1 है, दिस V1, मान लो ये V1 की वैल्यू दे तो -2 है. यस सर. ठीक है. अब ये बताओ, अगर यहाँ पर -2 है, मैंने ऊपर लगाया -5, ये मेरा डायोड है बीच में इस तरह से. अब मुझे बताओ ये काम करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा. बस वही तो खास है. हम Okay, sir. कैसे कर रहे हैं कि जो आपका V1 है, मींस V इज ग्रेटर देन V1. ओके सर. ठीक है. तो अब नेगेटिव होगा तो उल्टा कर दो उसको, अगर -V होगा तो -V इज लेस देन -V1, राइट? ओके तो इट मींस जो आपका इनपुट नेगेटिव लगाई मैंने, उस टाइम पे आपका डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपकी आउटपुट कितनी आ रही है यहाँ पर? -V1. इतनी बात क्लियर होगी? यस सर. Now consider the positive case when your input is plus V. At that time, what will be the output voltage? क्योंकि उस टाइम पे आपका कैपेसिटर जो है वो क्या होगा? वो तो वैल्यू को होल्ड रखेगा, डिस्चार्ज तो हो नहीं पाएगा, राइट? और जो आपका डायोड है वो क्या है? ओपन हो गया. तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? तो यहाँ लूप लगेगा. कहाँ से? यहाँ V से minus start करो. VC. It will be 2V minus V1. yes, that is starting from the input side. It will be plus V, right? Plus V plus V minus V1 is equal to V0. हाँ. And 2V और minus V0 V1. कितना आ गया? 2V minus V1. V1. Got it? Now हाँ. if I try to Yes, make the sir. plot, तो प्लॉट कैसा आएगा? P कितने में आएगी? 2V minus V1 के ऊपर, और नीचे कहां तक जाएगा बताओ? Minus V1. Minus V1 तक. वेरी गुड. ये वाली, नॉट दिस इज. सर ये नेगेटिवली क्लैंप हुआ ना. ये क्या हुआ? नेगेटिवली क्लैंप. आप बताओ. सर नेगेटिव ही लगा है. नो. सी, इनपुट कहां तक है? -V, है ना? हाँ. -V, -V1 से छोटा है कि बड़ा है?
सर छोटा है। छोटा है, तो हमारी वेव ऊपर आई तो नीचे आई है, उससे पर है ये सर। ऊपर आई, तो तो जो ऊपर चीज ऊपर आई उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव क्लैम्पर। पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव Right? क्लैम्पर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर बताओ मुझे। दिस वाज रिगार्डिंग योर क्लैम्पर्स। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मान लो अगर आपका ये इनपुट जो सी है, इट इज नॉट अ स्केयर वेव, राइट? तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपके पास ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका डायोड है, हाँ राइट? और ये रजिस्टर, सिंपल हमने क्लैम्पर पढ़ा था पहले। अब इस क्लैम्पर को अगर मैं इनपुट देता हूं एक साइन वेव, sorry, VI, right? So what will be the V naught? For the positive half, what will happen? Will diode conduct? No, sir. No, Diode sir. will conduct. So what will be the output? Same as that of input, है ना? क्योंकि अभी हम पहली साइकिल में लेके जाना कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ आपका। तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइम व्हेन कैपेसिटर गेट्स चार्ज। तो पहले हम नेगेटिव वाला केस ले लेते हैं, ठीक है? माइनस So let's say case 1 when my input is from नेगेटिव। T/2 to T, that is T/2 मेरा यहाँ पर है और ये T आ गया, राइट? इस टाइम पे क्या हो रहा है? अगर तो ये मेरा डायोड आइडियल है, if diode is ideal, right? So what will happen? Diode gets forward bias, isn't it? यस सर। तो अब आपका क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस टाइम पे। अब चार्ज कहां तक होगा? टू द मैक्सिमम वैल्यू, हाँ पीक तक उसकी। पीक तक चार्ज हो गया अभी तक। अब for the first case means when my input was from T/2 to T, my capacitor voltage will be what? Plus V volts, हाँ right? Now when I talk about the case 2 means इसके बाद मानो T/2 से T से लेके 3T/2 तक यहाँ तक आया, अगला पॉजिटिव आया, from T to 3T/2, what will happen? My capacitor voltage will be what? V maximum. It Yes, sir. means now my diode will be what? बताओ। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर एक Reverse कैपेसिटर में bias. ऑलरेडी वी वोल्टेज है, ये मेरा ओपन हो गया और यहाँ अब पे मेरा आ रहा है ना? अब सेम देगा वो। हाँ, तो अब आउटपुट फॉलो करेगी इनपुट को, लेकिन आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होगी? सर वी जीरो से स्टार्ट होगी? कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ मुझे? सर वी से वीसी से Zero करते हैं। Why V से start होगी? Because during the negative half my capacitor gets charged to plus V. हाँ So it means if suppose here I plot the output, this is my plus V. So it means now plus will be acting as what? My reference level of my reference input. So it will look like this. सर वी को हम वीसी भी कह सकते हैं ना यहाँ पर। V को हम VC भी कह सकते हैं। Wait. V हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि V हमारी पीक थी and VC is equal to V. ओके सर। राइट? सो यहाँ पर क्या हो गया? अब आपका जो सर्किट था ये पूरा का पूरा इसके रेफरेंस उठा के मैंने क्लैंप कहाँ कर दिया? प्लस V के ऊपर। क्लियर पॉइंट? यस सर। अब मान लो अगर ये डायोड आपका आइडियल ना होता तो क्या होता? तो फिर उसका भी ऐड होता। हाँ, तो उस टाइम पे बताओ आउटपुट क्लैंप क्या होती? तो उसके लिए सिंपल फंडा क्या है कि अगर आपका डायोड ये आइडियल ना होता, प्रैक्टिकल डायोड होता, तो इट मींस आउटपुट किस तरह से आती? लेट मी ड्रॉ दैट आल्सो। सर प्रैक्टिकल कौन सा जर्मेनियम पॉइंट का ड्रॉप हो रहा है उसके अंदर। सिलिकॉन लेते हैं ज्यादातर। सिलिकॉन ले लो जल्दी, ठीक है? तो मान लो ये आपका 0.7 वोल्ट लगा हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, जब मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा है, डायोड इज ऑन, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? -0.7 -0.7 यस सर। राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि अब जब हम कह रहे हैं कि जब आपका डायोड ऑन हो रहा है तो कैपेसिटर कितने में चार्ज होगा?
Sir, V minus 0.7. V minus 0.7. यहाँ P पर minus आपने 0.7. कैपेसिटर हमने कहा था जब चार्ज कब हो रहा है हमने फॉर व्हाट इनपुट फॉर माय इनपुट व्हेन इनपुट इज नेगेटिव Yes, sir. है ना तो इफ आई ड्रॉ हियर नेगेटिव इनपुट दैट इज नेगेटिव हियर पॉजिटिव हियर एंड इफ आई सॉल्व इट इट इज मींस जो आपकी इनपुट है नेगेटिव V माइनस V Negative V. नेगेटिव V उसमें क्या होगा प्लस VC. 0.7 0.7. हाँ. राइट तो इट मींस अब आपके पास जो पूरी की वेवफॉर्म है वो कहां बनेगी सोचो अब रेफरेंस लेवल कहां पर आएगा मेरे पास इट विल नॉट बी एट V ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. कितना नीचे आएगा E minus 0.7. 0.7 नीचे आएगा. तो अब आपका रेफरेंस लेवल यहां बन जाएगा तो अब आपका जो सिग्नल बनेगा वो कैसे बनेगा ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे में इसको क्रॉस करेगा और ये क्रॉस की पीक कहां पर आएगी minus 0.7. यस वेरी गुड 0.7 minus 0.7. गॉट इट Yes, sir. किसी बच्चे को कोई भी डाउट क्लिपर या क्लैम्पर के अंदर यू कैन आस्क दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक बाकी आप कोशिश करना कि ट्राई टू सॉल्व एज मेनी न्यूमेरिकल एज पॉसिबल फ्रॉम द बुक्स एनी बुक यू कैन पिक और एनी गूगल से कोई भी क्वेश्चन उठा लो क्लिपर्स का या क्लैम्पर्स का एंड ट्राई टू सॉल्व इट नहीं आएगा तो मुझसे पूछो Okay, sir. राइट नाउ अब जब आगे हमें शुरू करना है इसी के आगे कंटिन्यूएशन में है वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे ज़ीनर डायोड Diode. ये आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में किया हुआ है तो right? एक बार लास्ट में जो आपने किया था वो दोबारा बता दो हाँ पिछली बिल्कुल स्लाइड। बिल्कुल ये वाला यस सर। हाँ इसमें हमने क्या कहा वी हैव कंसीडर्ड डायोड टू बी प्रैक्टिकल डायोड सो व्हेन वी कंसीडर प्रैक्टिकल डायोड मींस डायोड के क्रॉस 0.7 का ड्रॉप होगा अब जो हमारा कैपेसिटर है वो इनपुट वोल्टेज में चार्ज नहीं होगा जैसे हमने पहले कहा था ना कि आवर कैपेसिटर विल गेट चार्ज टू द वैल्यू प्लस V अब V पे चार्ज नहीं हो रहा कहां पे चार्ज हो रहा है वो इट इज गेटिंग चार्ज टू V minus 0.7 क्लियर Yes, sir. हुआ तो इट मींस अब जो आपका रेफरेंस लेवल है वो कहां आ गया V minus 0.7 पे आ गया अब फॉर द पॉजिटिव आप ऊपर जाएगा नेगेटिव आप नीचे तो नेगेटिव भी कहां आएगी minus 0.7 व्हाई बिकॉज़ व्हेन माय डायोड इज conducting वो कब कंडक्ट कर रहा है फॉर माय नेगेटिव इनपुट एंड व्हेनेवर माय इनपुट इज नेगेटिव आई एम गेटिंग व्हाट इज द वोल्टेज हियर मैक्सिमम वोल्टेज 0.7 0.7. तो वो उसकी पीक -0.7 तक जा सकती है उसके नीचे नहीं जा सकती क्लियर Yes, sir. Yes, sir. so now let's talk about the Zener diode so first of all let me draw the symbol of Zener diode Z. yes right अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि Zener diode में हम कैसे लिखते हैं पॉजिटिव हेयर नेगेटिव हेयर Okay, sir. राइट ये ध्यान रखना है आपने पी और एन सर ये रिवर्स बायस पे ही ऑपरेट होता है ना? यस तो अब इसमें क्या है जब ये डायोड ऑन है राइट अब इसमें क्या होता है इसके क्रॉस हम लिखते हैं VZ VZ का मतलब क्या है इट्स अ Zener वोल्टेज Voltage. Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज Yes, sir. तो जब भी आप मार्केट से कोई Zener डायोड परचेज करो ना तो पहले तो आप उस डायोड का नंबर के अकॉर्डिंग उसकी डाटा शीट ओपन करो राइट कि उसकी जैसे बताया था आपको डायोड स्पेसिफिकेशन शीट होती है ऐसे Zener ब्रेकडाउन की एक शीट होती है तो वो शीट ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा कि ये Zener डायोड कितनी ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम करता है दैट मींस अगर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच कर गया तो क्या होता है एक्चुअल में तो लेट मी ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट तो यहाँ पर मान लो आपके पास IZ है यहाँ पर आपके पास V वोल्टेज है तो आपका Zener जो होता है रिस्पांस ऐसे जाता है यहाँ से कांस्टेंट ऑलमोस्ट 0 then once the breakdown happens it jumps straight away so this is your VZ तो अगर तो आपकी इनपुट वोल्टेज if input voltage is less than VZ तो आपका Zener diode ऑन नहीं होता तो क्या होगा Zener diode is off and if V in greater than equal to VZ then Zener diode is on तो पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि Zener diode कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है जैसे हमारे ऑर्डिनरी डायोड्स होते हैं तो Zener diode में क्या है कि अगर तो मेरी इनपुट वोल्टेज Zener वोल्टेज से कम है तो मेरा डायोड ऑन बिल्कुल नहीं होगा और अगर Zener वोल्टेज के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो मेरा Zener diode ऑन हो जाएगा ये चीज पहले Okay, आपको नोट करनी है सेकंड थिंग अगर ये मेरा ऑन होता है तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा विद अ बैटरी ऑफ VZ पॉजिटिव here negative here. This is a
Zener diode equivalent model if Zener diode is on. समझ में आ गया? पहली बात तो ये है कि डायोड कब ऑन होता है, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा है या उसके बराबर है। अगर ऐसा होगा तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा विद व्हाट, विद दिस पर्टिकुलर मॉडल। नाउ सर हाँ जी, सर लाइक मुझे ये चीज पूछनी है, लाइक अगर हमारा जो जीनर डायोड है वो 5 वोल्ट पर ऑन होता है, मतलब उसकी जो जीनर वोल्टेज है। है वो 5 वोल्ट है, हाँ हम पीछे से उसको 15 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। दे रहे हैं, हाँ तो लाइक वो जो उसके आगे जो सप्लाई हमें मिलेगी वो 5 वोल्ट मिलेगी या 15 प्लस 5 वोल्ट मिलेगी? अभी आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी पूछ लिया, ये हम सारे केस अभी बताऊंगा मैं आपको अभी। ओके सर। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये क्वेश्चन हमारा डिस्कशन के पॉइंट है कि अगर हमारी इनपुट 0 से ज्यादा होगी तो कैसे काम करेगा, कम होगी खाली तो क्या 5 होगा, वोल्ट मिलेगी, है ना? है ना? वो अभी अब जस्ट थोड़ा सा होल्ड करो, बिल्कुल आपके पॉइंट के ऊपर ही आऊंगा मैं अभी। ठीक ओके है, सो अभी हमने क्या बात करी, सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि अगर जीरो डायोड मेरा कब ऑन होता है कब ऑफ होता है। अगर ऑन होता है तो ऐसे मॉडल बनेगा, अगर ये ऑफ होता है, ठीक है, ये ऑफ होता है तो आपका जो जीरो डायोड है it can be replaced with simply open circuit. If my input is less than Vz, so I am saying Zener diode is off. And if it is off, तो आपने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना। क्लियर हो गया? अब मैं समझाता हूं Yes, आपको कि जीनर डायोड को जब सर्किट में लगाते हैं तो कैसे ये फंक्शन करता है। हमें सिर्फ दो चीजें मेन पता होगी, कौन सी, कि डायोड कब ऑन है और कब ऑफ है। ये मुझे क्लियर हो गया, और मुझे ये भी क्लियर हो गया कि अगर डायोड ऑन है तो मैंने कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है उसको, डायोड ऑफ है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके सर। यहाँ पर किसी को डाउट इतना, किसी को? नो सर। Okay, so now let's go ahead and let's draw one circuit. So let me take a battery, which is my input. Let me call this as VI input. And let's say here I am having one resistor R, and I have placed one Zener diode. Across the Zener diode, I have also placed one load resistor. Any value of load resistors are in. And this I am writing here VZ, positive here, negative here. Along with this, I also have mentioned here one term known as PZM. PZM का मतलब क्या है यहाँ पर? Maximum power dissipation across the Zener diode, which it can handle. तो जब आप कोई डायोड की स्पेसिफिकेशन शीट देखोगे ना बच्चे, जीनर डायोड की, मतलब टॉलरेंस है उसकी। यस, स्पेसिफिकेशन शीट, तो इसके अंदर एक टर्म होगा VZ कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है इसकी, and along with Zener breakdown voltage, it also refers PZM, that is the maximum dissipation or maximum dissipated power, right? So Zener diode कितनी maximum power dissipate कर सकता है वो लिखा हुआ है, इसकी रेटिंग गिवन होती है। अब let's try to understand this circuit. तो जब भी आपको Zener diode के कोई सर्किट को एनालाइज करना है तो पहला स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप नोट करो। फर्स्ट स्टेप इज दैट remove Zener diode and try to compute the voltage across Zener diode terminals. क्या मतलब है इसका? कि इस सर्किट को अगर मैं दोबारा से बनाऊं यहां पर आपके लिए, तो आपका ये बैटरी लगी हुई थी, ये है, और मैंने डायोड को निकाल दिया, यहां से रिमूव कर दिया। अब क्या करना है मेरे को, ये मेरा RL है, ये मेरा R है, ये मेरा VI है, राइट? अब मुझे यहां पर V निकालना है। मैंने क्या किया, डायोड जो जहां पर डायोड था उसको हटा दिया वहां से। अब मैंने निकालना है कि इस दो पॉइंट्स के क्रॉस मेरी कितनी वोल्टेज आ रही है। ये क्यों निकाल रहा हूं मैं? ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा डायोड ऑन होगा भी या नहीं होगा, राइट? क्योंकि ऑन ऑफ के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि क्या मेरी इनपुट VZ से ज्यादा है या कम है, राइट? तो उसके लिए पहले मैं क्या निकाल रहा हूं कि मेरी V इसके क्रॉस कितनी आ रही है। तो आई होप आपने पढ़ा होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा है सर।
Yes, sir. उसमें क्या होता है, जैसे मैंने मान लो आपकी इनपुट दी VI, एक ये रजिस्टर लगी हुई है, एक ये रजिस्टर लगी हुई है, मान लो ये आपकी R है और मान लो ये आपकी RL है, और मुझे इस पॉइंट वोल्टेज निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? सीरीज में करंट सेम होता है ना? और Yes, करंट कैसे yes. निकालते हैं? मान लो I आप निकालना है, I कैसे निकालते हैं? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R प्लस प्लस RL, RL। ठीक है। एंड इफ आई वांट टू कंप्यूट वोल्टेज V, वोल्टेज V कहां पर है? इट इज अबव ग्राउंड लेवल अक्रॉस RL, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। R क्या है यहाँ पर? RL, right? So if I put the value of I, what I will get? VI into RL upon R plus RL. ओके। ये क्लियर हुआ को नहीं हुआ किसी को? ये मेरा क्या है? एज पर द वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये आप बहुत ज्यादा यूज करोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करो कोई भी आगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि आपका जो टोटल वोल्टेज है वो कैसे डिवाइड हुई है ना? तो हमने क्या किया, जो टोटल वोल्टेज लगाई है डिवाइडेड विद टोटल रेजिस्टेंस इज गिव्स मी टोटल करंट दैट इट विल जनरेट, राइट? और सीरीज में करंट सेम है हमारे पास। तो अब हमने किस पॉइंट पे निकालनी है वोल्टेज? ग्राउंड से ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, V इक्वल टू I है फॉर्मूला हमारा, राइट? तो हमारे पास VI इंटू ये आ गया, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, वोल्टेज निकाली मैंने भी। सेकंड स्टेप क्या है? नोट डाउन दैट सेकंड स्टेप, इफ V इज लेस देन VZ तो क्या होगा? Zener diode turns Off. off, ऑफ हो जाएगा। यस सर। right? अगर V greater than equal to VZ है तो Zener diode वो ऑन हो On. जाएगा। टर्न्स ऑन। ये आपके दो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगी, अगर तो वो ऑफ हो गया फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना? पर जब ये ऑन है तो हम क्या करेंगे? वी विल रिप्लेस इट विद द इक्विवेलेंट मॉडल। वो क्या था हमारा? ये वाला मॉडल, यहाँ पर लगा देंगे VZ, राइट? और ये मेरी RL रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया था? VI लगाया था, पॉजिटिव अपसाइड नेगेटिव। अब इसके अकॉर्डिंग देखो आपके पास, अगर ये VZ यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा इनपुट करंट आ रहा है मान लो I ऑफ I। अब यहाँ पर जब ये ऑन है तो मेरा करंट डिवाइड होगा डेफिनेटली। जब ऑफ था फिर तो कोई इश्यू नहीं था, ऑफ में तो जो करंट इनपुट में आ रहा है वही आउटपुट में जा रहा है, कहीं हो जा ही नहीं रहा। लेकिन जब मेरा जीरो डायोड ऑन है, वो कब ऑन है? जब हमने कहा कि V इज ग्रेटर देन V2। तो अब मेरा करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है। लेट मी राइट हियर जीरो करंट एज IZ एंड लेट्स से हियर एज IRL टू मेक इट मोर क्लियर। ये IRL क्या डिनोट कर रहा है? करंट फ्लोइंग इन लोड रेजिस्टेंस RL एंड IZ डिनोट्स जीरो करंट। सर हाँ जी, sir, actually there was a little network issue, sir. Can you please repeat this part again? दिस सेकंड वाला पार्ट। Yes, sir. Okay, we are discussing that कि if V is less than VZ, हमने पहले V निकाला लास्ट स्लाइड में, यहाँ V निकाला था voltage divider rule, right? So after Yes. computing the voltage divider rule, we have computed this voltage, compared this voltage with the Zener voltage. Okay, Zener voltage तो क्या है? It is fixed, Yes, ma'am. right? Yes. तो आपने इस voltage को compare करना है with VZ। अगर तो less than VZ है तो क्या होगा? Diode is off। तो Off हो आपका जो जाएगा। इनपुट करंट है वही आपका लोड करंट बन जाएगा। हम्म। लेकिन अगर आपका डायोड ऑन है वो कब होगा? जब V greater than equal to V2 होगा। So Yes. in that scenario, the diode turns on and you will replace it with this particular model, that is with the battery of VZ. Hmm. अब हम ये बात करें कि इनपुट जो करंट है अब वो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है जीरो डायोड की वाले टर्मिनल में, एक जा रहा है आपका लोड में। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? We will apply here Kirchhoff's current law। वो Sir? Kirchhoff's current law पढ़ा आपने ये? हाँ वो तो पढ़ा है सर, बट ये जीरो की तरफ क्यों जाएगा करंट हमारा? लाइक वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ना? हमने क्या बोला था? हमने ये बोला कि आपका जब इनपुट वोल्टेज आपने जो लगाई VI है ना, उस VI लगाने के बाद आपने कुछ V निकाला पहले। हाँ। अब V हमने क्या है कि वो ग्रेटर इक्वल टू V2 आया, VZ सॉरी नॉट V2, VZ, ठीक है? तो अगर ये ऐसा केस आएगा इसका मतलब क्या है कि जीरो डायोड क्या हो गया? ऑन हो गया।
यस सर, ऑन का मतलब क्या, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। राइट। तो इट मींस यहां से जो हमारा इनपुट करंट जनरेट कर रहा है वो कितना कर रहा है, आई ऑफ आई। अब इस पर्टिकुलर नोड पे, यहां पर लेट मी राइट नोड 1, इस नोड 1 पे करंट डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, राइट। तो टू पार्ट्स में डिवाइड, मैंने क्या कहा, दैट इज इक्वल टू लेट्स से आई जेड और दूसरा आई आर एल ले दिया मैंने। तो इट मींस माय इनपुट करंट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो करंट प्लस आई आर एल। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरा डायोड ऑन होता है, जो बच्चे ने पूछा था मेरे से अभी पहले, कि इफ जीरो डायोड इज ऑन व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। नाउ जस्ट रेफर टू दिस पॉइंट कि आउटपुट वोल्टेज इज अक्रॉस द लोड रजिस्टर, दिस लेट मी कॉल दिस नंबर 2 और नंबर 3। Across the point 2 and 3 I am measuring what, output voltage, isn't it? So now this output voltage will be what, is equal to the VZ only, क्योंकि आपका जीरो डायोड जब ऑन होता है तो आपका अपने पास कितनी वोल्टेज मेंटेन करता है, जीरो वोल्टेज। यस सर, तो इट मींस आई एम गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज एज VZ। जेड। If my output voltage is VZ, can you tell me what will be the IR or IRL? That will be V0 divided with RL, आरएल, यस सर, और वो क्या है, VZ upon RL। यस सर। Got it? Now I got IRL. Now I want to compute IZ. तो IZ कैसे निकालूंगा मैं, इनपुट करंट माइनस IRL, आरएल करंट, यस सर। राइट। अब इनपुट करंट कैसे निकालेंगे, I of I, सर आईजेड प्लस आईआरएल। यस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास IZ ये आ गया, बिकॉज वी नो इनपुट करंट कितना है, इनपुट टोटल वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो अब हम क्या करेंगे कि जो PZ है कि कितनी पावर वो डिसिपेट कर रहा है जब डायोड मेरा ऑन है, वो कैसे निकालते हैं, IZ into VZ। पीजेड, यस सर, वीजेड। तो अगर ये वोल्टेज सॉरी जो भी पावर आपकी डिसिपेशन है, दिस पावर डिसिपेशन शुड बी लेस देन PZM, जो हमने पहले डिस्कस किया ना, PZM यहाँ पर लिखा था मैंने, ये PZM देखो। हाँ सर। सो आपकी जो भी आप जीरो डायोड यूज कर रहे हो उसकी जो मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर है हमेशा आपके सर्किट में जो ऑपरेट कर रहा है वो उससे कम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका डायोड खराब हो जाएगा। काम नहीं करेगा। तो अभी जो हमने डिस्कस की ये वाली सर चीज, एक बारी नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो हाँ बिल्कुल, प्लीज। हाँ ये लो। अभी हमने जो ये केस डिस्कस किया, ये कौन सा केस डिस्कस किया है, व्हेन डायोड इज ऑन। let me note down your separate pen. We have done the case for the VI fixed and RL fixed. हमने एक सर्किट लिया, उस सर्किट की हमने बिहेवियर स्टडी किया फॉर इनपुट फिक्स्ड एंड लोड रेजिस्टेंस फिक्स, अभी कुछ चेंज नहीं किया अभी हमने। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पे देखा। इसमें किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज आस्क, और शुड आई रिपीट इफ एनीबॉडी वांट्स। सर वो पीजेड के बारे में बता दो, जो पीजेड कम होनी चाहिए। की अमाउंट ऑफ repeat कर दो। बाय द जीरो डायोड, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट की जीरो डायोड में करंट कितना फ्लो कर रहा है इनटू द जीरो वोल्टेज, तो वो पीजेड आ गया। अब जो पीजेड निकालोगे आप किसी भी पर्टिकुलर सर्किट के लिए, उसको कंपेयर किससे करोगे, जो आपकी पीजेड एम है। पीजेड एम कहां से आया आपको, फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर डायोड स्पेसिफिकेशन शीट। तो आपको हर एक जीरो डायोड का पीजेड एम पता होगा ऑलरेडी फ्रॉम दैट शीट। तो अगर आपकी पीजेड एम से ज्यादा आएगी तो आपका डायोड खराब हो सकता है। तो यू ऑलवेज नीड टू सेलेक्ट RNC in such a way that you always get PZ less than PZM. Clear? ओके सर, Any doubt? यस सर। If this thing is clear, let's No, sir. try to do one numerical to make it more clear. Right? So numerical में क्या है? I am giving a circuit. Let's take R is equal to 1 kilo ohm, and here I am applying a Zener diode. Across the Zener diode, I am taking a load resistor RL, and let's take its value to be 1.2 kilo ohm. And I am giving a supply, fixed supply of 16 volts. And let me give you the VZ. VZ which I am using here is 10 volts.
This is 10 volts, this is 16 volts. And for this zero diode, PZM is given to you as 30 milliwatt. अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? For this zener diode in circuit, determine number 1 VL, number 2 VR, number 3 IZ, number 4 PZ. IZ कौन सा है? This is your IZ, right? This is your VR. This is your VL. VL का मतलब क्या है? लोड वोल्टेज. लोड वोल्टेज और VR का मतलब क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टेज. तो इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, राइट? एंड यू नीड टू कंप्यूट PZ. तो पहले का आप स्टेप क्या होगा आपका, इसका बताओ मुझे. से VL10 आ जाएगी। पहले तो फॉरवर्ड में है तो उसे सिंपली एक टर्मिनल बनाना पड़ेगा, उसे एक नॉर्मल Forward बैटरी में बनानी सर, forward पड़ेगी। में VL तो 10 आएगी। आपने VL10 पहले क्या आएगी। लिखना है? जीरो डायोड को निकाल दो. पहले बैटरी बनानी है उसकी। बैटरी 10 नहीं वोल्ट की बनानी. बैटरी बन जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या, नोट करो, देख ध्यान से, फिर से बनाता हूँ. आपके ये उससे- जो इनपुट था, उसका front इनपुट chip- एक्सिस रहेगा, ये 1 किलो, और यहाँ से डायोड को निकाल दो, ओपन कर दो. और यहाँ बनाओ V. पहले V निकालना ना, क्योंकि V निकालने के बाद ही पता लगेगा कि आपका डायोड ऑन भी है या ऑफ है. क्योंकि हमें देखो ना, इफ आई गो बैक टू योर एनालिसिस, तो वो तो फॉरवर्ड में है ना, तो फॉरवर्ड में तो कुछ नहीं देखना बच्चे, आपको मैंने वही बताया. भाई स्टेप्स क्या है? VZ है। First step is remove zener diode and try to compute the voltage across the zener diode terminals. तो चाहे फॉरवर्ड, यहाँ पर ही फॉरवर्ड था, देख रहे हो, लेकिन हमने क्या निकाला? पहला स्टेप क्या है? V निकालना है कि वोल्टेज कितनी है zener diode के. अगर मैं zener diode मेरा यहाँ पर ना होता मान लो, तो कितनी वोल्टेज आती है स्पॉट्स के बीच में. फिर वो निकालने के बाद then you need to compute कि whether diode is on or off. तो let's try to do that. तो पहला स्टेप हमने वही फॉलो करेंगे. डायोड को निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ पर हमने निकाल दिया 1.2 किलो ओम. This is your 1 kilo ohm and this is 16 volts. Now apply the voltage divider rule. तो voltage divider rule क्या कहता है? Total voltage divided with total resistance कितनी है? 1K plus ये 1.2K into 1.2K. 1.2K। कितना आगे सॉल्व करो, बताओ मुझे, शाबाश. If I solve it, it's coming out to be, I suppose, 8.73 volts. आप ही चेक करो, ये आता है कुछ और आता है? 1 second। ठीक है सर. ये आ रहा है? हाँ जी सर. अब देखो ये जो V आया कितना है? 8.73. It means 8.73 is less than VZ. So what will happen? वर्क नहीं करेगा। डायोड ऑफ वर्क नहीं करेगा. Diode will remain off. ऑफ रहेगा. If diode is off, then can you tell me what will be the voltage VL? VL कितनी आएगी? सर वो तो फिर 16। हाँ, 1 second। 16 से कम होगी. obviously कम होगी यार. ऑब्वियसली कम VL होगी। कितना है? देखो ध्यान से. -8.73 आ जाएगी। कितनी आएगी? 8.73. 8.73। Very good. क्योंकि V हमारा देखो ये दो पॉइंट्स के बीच में V है, और वो तो VL है हमारी. यस सर। अब नेक्स्ट बताओ VR कितनी होगी? VR 16 कौन सी है? अक्रॉस 1 किलो. यस सर। तो बताओ कितनी होगी? ये 16 माइनस 16 minus 8.73 16 minus 8.73 कितना आ गया? निकालो. 7.2। ये आ गया 7.27 7.27 volts. निकल गया. यस सर। अब थर्ड क्या हाँ। पूछा हमसे? IZ. 0. 0। जब ऊपर, जब वो कंडक्टर निकल तो IZ 0 होगा. अब यस सर। नेक्स्ट क्या पूछे? PZ. 0. वो भी 0 क्योंकि IZ 0 0. IZ 0 तो PZ भी 0। डन. यस सर। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे. क्या तरीका? बस सेकंड पार्ट करेंगे कि नाउ लेट्स टेक द लोड रेजिस्टेंस टू बी 3 किलो ohms. लेट्स टेक द लोड रेजिस्टर टू बी 3 किलो ohms. बाकी सब कुछ सेम है. ये 3 किलो ohm कर दिया. यहाँ 1 किलो ohm था हमारे पास. यहाँ पर हमारा जीनर डायोड लगा दिया, राइट. और यहाँ पर हमारी बैटरी है 16 वोल्ट्स की. और VZ हमारा वही है 10 वोल्ट्स. और PZM इज 30 मिलीवॉट. यहाँ हमारा VL है, और ये हमारा VR है. यहाँ हमारा IZ है, और यहाँ हमारा IR. आप मुझे बताओ कितना आएगा? सर एक सेकंड।
सबसे पहले 3 step क्या किलो होगा? में ना आ वो। जाएगी। डायोड निकाल दिया, 12 वोल्ट आ रहे हैं। 12 वोल्ट आ गई भी। यस तो सर। अब क्या होगा? 10 आ जाएगी। हाँ, तो इट इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट्स, तो इट मींस डायोड इज ऑन, राइट? अब कनेक्ट कर रहा है तो इसका सर्किट बनाओ। सो इफ इट इज कनेक्टिंग, आई विल रिप्लेस इट विद VZ. 3K here. This is my, now I will write 10 volts. Here 16 volts. Here 1K. यहाँ 10 volts क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर VZ 10 volts था. It means मेरा जब डायोड ऑन होगा तो यहाँ पर वोल्टेज 10 Conduct वोल्ट से करेगा। करेगा, कंडक्ट करेगी। राइट? अब हमें क्या Conduct निकालना था? फर्स्ट टर्म VL. बताओ मुझे VL कितना आएगा? 10 वोल्ट। सर 10 वोल्ट। क्योंकि 10 VL वोल्ट क्या है? है। अक्रॉस दिस टर्मिनल्स, यहाँ पर तो 10 वोल्ट लगा हुआ है हमारे 10 पास। वोल्ट। सेकंड क्या निकालना है हमने? VR. वो क्या होगा? सर 16 minus 10 वोल्ट। Yes. 6 Very good. 6 6 volts. volts. 6 वोल्ट। 6 volts. थर्ड का निकालना है हमने volts. IZ. IZ के लिए क्या करोगे? पहले IL निकालो, वही कहते ना हमने पहले। यस सर। IL क्या होगा? दैट इज VL अपॉन 3K. VL कितना निकाला आपने? 10 वोल्ट्स, 10. तो 10 वोल्ट्स अपॉन 3K होगी। अब नेक्स्ट क्या निकालोगे? IL आ गया, तो नाउ यू कैन पुट I of R. IL क्या होगा मेरे पास? दैट इज VR अपॉन Into 6. हाँ ठीक है सर। VR कितना है? 6 सर वोल्ट्स, IZ प्लस I। हाँ 1K. अब निकल ऐसे जाएगा भी कर सकते IZ. हैं ना, हाँ जी बोलो। टोटल आई में से IL माइनस कर दें। यस, तो 6 मिली एम्पियर, ये जो आया हमारा IR, माइनस 10 by 3 कितना आया? 3.33 मिली एम्पियर. कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 2.67 मिली एम्पियर्स. आ गया? यस सर। वंस यू गॉट IZ, तो नेक्स्ट क्या निकाला हमने? PZ. PZ कितना होता है? IZ into VZ. PZ 2.67 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई विद 10 वोल्ट्स, कितना आ जाएगा? सर 26.7 26.7 6.7। मिली वोल्ट्स, मिली वॉट सॉरी. अब ये चेक करो, क्या ये PZM से कम है? यस, क्योंकि PZM कितना गिवन था आपको? 30 वॉट्स, और आपका PZ कितना आया? 26.7. 26.7. मींस दिस सर्किट विल डेफिनेटली वर्क. सर अगर वो PZ 30 आ जाता, लाइक अगर ऐसा केस तब भी काम कि वो करता, तब भी काम करेगा, अगर उससे ज्यादा हो जाए लेकिन फिर नहीं अगर इससे करेगा, ऊपर आता फिर काम नहीं करेगा। फिर नहीं करना फिर. ओके सर। इतना क्लियर होगा सबको? यस सर। तो विल स्टॉप हियर ओनली. नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसका बताऊंगा कि अगर मान लो मैंने लोड को कितना लोड रखूं कि मेरा डायोड डैमेज ना हो, है ना, उसकी भी एक लिमिट होगी. सिमिलरली मैं लोड अगर मैंने फिक्स कर दिया, इनपुट को वेरी किया, तो आउटपुट कैसी आएगी? तो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस बोथ दिस केसेस कि वी विल कीप VI फिक्स्ड, RL वेरिएबल, एंड देन वी विल चेंज VI एंड कीप RL फिक्स्ड. ओके सर। राइट, so let's stop now. Let me take your attendance quickly. सर हाँ जी बोलो. सर पिछली बार भी सर मेरा लॉगिन नहीं उसी और क्लासरूम में जाता है, इस बार भी कोई और क्लासरूम में ही गया हूं मैं। इस बार मैं सेकंड ईयर में चला गया।